Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, a very warm welcome everyone. Good morning, afternoon, evening, wherever you are. Hope you are doing well. You're staying healthy and you're staying safe. And welcome back after almost 1 week. शायद मैं एक हफ्ते पहले live हुआ था and मैंने थोड़ा mention भी किया था the reason why I was not coming live that often. Finally, I have relocated. I have moved to a different city, different state, and उसकी वजह से I was in between the move. तो उस चक्कर में मैं ना लाइव आ सका ना मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहा एंड जहाँ तक मुझे कुछ फ्रेंड्स कहें या कुछ लोगों से जो पता चला कि देयर वर पीपल रिजॉइसिंग, कुछ लोग रिजॉइस कर रहे थे और कुछ लोग वर मिसिंग मी अ लॉट क्योंकि उनका कंटेंट जनरेटर जो था, जो कंटेंट प्रोवाइडर था उनका, वो चला गया था. तो here I am back. On a this was just on a lighter note, but on a serious note, बहुत कुछ हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर. इतनी सारी एक्टिविटीज मैं खुद भी आना चाहता था. The last session that I did was when the entire turmoil in Maharashtra started. वहाँ पर हमें एक सेशन किया और उसके बाद हमने बहुत कुछ देखा. कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं obviously, which are definitely in the right direction, which is making us at least have a little bit more hope. So वो भी है. At the same time, I don't want to let me use the right words because यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं who are just waiting कि किस तरह से कुछ कोई गलत चीज़ बोली जाए. तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जो सब कुछ हुआ, चाहे अगर हम महाराष्ट्र की सिर्फ बात करें, my personal take on that, and again this is my personal take, we still need to wait and watch कि ये सब जो हुआ ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या स्टोरी है, इसके पीछे क्या प्लानिंग है, because we don't know anything yet. दूसरा, पर्सनली अगेन आई वुड लव टू सी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे बीच में भी, वॉरियर्स में भी हैं, who were very very hopeful के पॉलिटिकल जब चेंज होगा महाराष्ट्र में, Sushant will get justice. So now it's time. I will also ask them the question. जैसे हम पिछली गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछते थे वैसे ही हम अब इस करंट गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछेंगे. और अब वो सब जो सपोर्टर्स थे, जो लोग चाहते थे कि ये हो, now it is time for them also to see कि how right they were or how wrong they were. End of the day, there has to be some clarity around what will happen around Sushant Singh Rajput case. Again, जब मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ था, आई केम हियर स्पेसिफिकली फॉर सुशांत सिंह राजपूत, इवन दो मैं उससे पहले बहुत सारे और चीज़ें, टॉपिक्स, बॉलीवुड, म्यूजिक, बहुत कुछ करता था, बट for the last almost 2 years now, the focus has been around Sushant Singh Rajput and the movement. So I don't really care about what the political scenario is. We all should focus on Sushant's justice. That's very important. हेलो, एक बार मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आ चुके हैं. हेलो जूडी, हेलो सोनल, हेलो SSRFC, हेलो जिल, Jasmine, Sat Shri Akal, hello Ashish ji, Punita, hello, good to know Srinivas. So happy, last time also you mentioned, more power to you and more blessings to you as well. Hello everyone, whosoever is here, and thank you so much. Hello RS, hello Ayush, and everybody who is watching. Hello Paki. uh, Let me just bring this. I support Nupur Sharma. Thank you for putting this comment as well, Paki ji. Uh, it's good to support. It's good to stand for what is right, but on the same time, at the same time, I really need to even talk a little bit about that as well. Hello, Deepa ji from Australia. Hello, Shravani. Hello, everyone. So yes, around Nupur Sharma. जो कुछ भी हुआ नुपुर शर्मा की उस स्पीच, उस टीवी डिबेट के अंदर उनका बोलना, while it is factually right,
nobody can defy that, क्योंकि that जो भी उन्होंने उस डिबेट में बोला था, there is, you know even the scholars have accepted that what she said is right. So yes, we should all support Nupur Sharma, no two ways about it. uh, Same at the same time. uh, thank you, Judy. At the same time, what Supreme Court judges have done, again, I want to keep these two things different: Supreme Court and Supreme Court judges. uh, क्योंकि it's like प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एक पीएमओ ऑफिस होता है जहां पर द लीडर्स चेंज. You could agree or disagree with the leader, or whosoever is the prime minister, or whosoever is the home minister, or whosoever is the chief minister. You don't disrespect the office itself. आज की डेट में अगर महाराष्ट्र का ये एग्जांपल लेके चले, देर इज सीएमओ ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस ऑफ महाराष्ट्र, जिसका ट्विटर हैंडल भी अगर हम बात करें, वॉज हैंडल्ड और वॉज मैनेज्ड फॉर उद्धव ठाकरे. We did not like what Uddhav Thackeray did in Maharashtra. We did not like, the way he handled the politics in Maharashtra. But we do not disrespect the handle, because now the same handle will be managed for Eknath Shinde ji. So this is the thing that I really want to highlight here as well. कि आप लोग, while you are unhappy with how the verdict has been given, this could have been a very simple one liner, that what, Nupur Sharma, what you did on a live channel in a debate was wrong, and you should just apologize to the entire country, period. The kind of statements being made, and was specifically for Nupur Sharma. Now I'm gonna just read out. जब मैंने भी वो पढ़ी, तो I also felt a little, not little, I felt offended, क्योंकि this was more like a direct dig at her. Uh, it was said the Supreme Court on Friday came down heavily on suspended BJP leader Nupur Sharma for her controversial comments against the Prophet, saying her loose tongue has set the entire country on fire, and asked her to immediately apologize to the nation for her remarks. The Supreme Court also said when you lodge a complaint against someone, that person is arrested, but nobody dares to touch you. That shows your clout. I really did not understand why any Supreme Court judge had to kind of say such kind of things, some statements made against a person. Do they do it for every other individual who, like, is either a criminal or not a criminal? But क्या इस तरह से the statement should have come from such senior esteemed judges of the highest authority? That is a shame on those two individuals who have said and done this. We should not defame the Supreme Court of our country. End of the day, there are some great judgments that have been passed have been passed in the past. But at the same time, this is not acceptable that people are now bashing the Supreme Court. You need to bash, or you need to target, or you need to focus on those judges who have passed such remarks. This looks like a personal remark to an individual who maybe, which might have been because of some political affiliation, or might have been because of whatever, some personal things that might have happened. Again, we are just speculating. बट सच काइंड ऑफ रिमार्क्स, इस तरह की बातें करना, इस तरह के रिमार्क्स देना, वो भी एक पॉलिटिकल लीडर के लिए, फॉरगेट अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो, किसी के लिए भी आपको ऐसे, you and your loose tongue, these kind of words used for some lady, it's like you want more of such people to gain confidence. Okay, you know what, उन दो लोगों ने जिन्होंने कन्हैया लाल को मार दिया, they will feel that, what, look at how even a well-read, well-educated judge has passed a comment towards this lady. So what he has said, we have done something around that. So
everything they will try कि हमने इसको justify कर लिया, which is wrong, which is absolutely wrong. uh, or as a judge, you are आप किसी एक judges सारे ही, they are well educated and they have to be well informed, they have to be unbiased when they're giving any kind of verdict. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, who have even more serious and high level responsibility for cases that could be pertaining to our country's safety and security. तो ऐसे cases में, ऐसे scenarios में, judges have to be very, very, very careful around what they say and how they say it. So इस तरह की shame, absolutely, Satish ji, shame on them is what I say. uh, and that's what I said. So you're putting the right words. They could be from one political party, they could have an affiliation with a political party, and that's why they were supposedly saying such things. बट उसका मतलब हाँ ये नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारा सोशल मीडिया पे देख रहा था आज. आई फाइनली हैड सम टाइम, सो आई वाज लुकिंग एट पीपल shaming and defaming the Supreme Court. Don't forget, हम लोग as SSR warriors have kept a lot of high hopes on Supreme Court, have kept a lot of high hopes on our judicial system, even though we have seen a lot of things that have gone wrong in the past, and possibly there might be other things which can go wrong in the future as well. बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट, द सुपीरियर सुप्रीम अथॉरिटी, उसको भी हम डिफेम करें. सो लेट्स ऑल बी वेरी रिस्पेक्टफुल, let's all be very, very mindful around that. Secondly, जो नुपुर प्रसाद ने कहा, again, not to put her in a wrong spot, but at the same time, वो कहते हैं ना, with responsibility, with a little power comes a lot of responsibility. If you are in a position where you have either people who can get influenced, or you have people who follow you, or you are in a platform where you're getting a lot of visibility, you have to really mind your words. You have to think about it. You cannot be you know वो क्या कहते हैं उसको, aggressive or assertive at different platforms. You have to also be very mindful. हमने तो अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी बातों पे भी हमने इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की है कि what, we should not invoke people, we should not provoke anybody to do certain things. तो इस तरह की अगर आप बात कर रहे हो किसी ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में, then of course you have to be very, very careful, is all I want to say around that. So whatever she said, she apologized. She was actually, the party itself had taken action against her. उनको जो 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, I think that was the right thing that any political party should have done when they see something of this nature happen. So exactly. Judges should not lose the presence of mind because of the statement. It will boost morale of culprits. Absolutely. And that's what आशीष भाई, यही मैं कह रहा हूं कि जब ये जजेस ने इस तरह की लूज टंग जैसी स्टेटमेंट्स यूज करी, वो लोग जिन्होंने जाके कन्हैया लाल जी को मारा, एंड वो अब अपने केस में इस केस का रेफरेंस देंगे कि लुक एट हाउ अ सुप्रीम कोर्ट जज हैज पास्ड ऑन अ वर्डिक्ट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेडी, जिसको वो यूज कर रहे हैं टू जस्टिफाई देयर किलिंग. एंड हमारे बीच में भी कुछ ऐसे लोग आए थे, इस मूवमेंट में भी आए थे, जिन्होंने कहा हमें रिपब्लिक टीवी ने या हमें किसी मीडिया चैनल ने प्रोवोक किया, उन्होंने हमें अभी तो ऑन अ लाइटर नोट अगेन, अभी तो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरी कुछ एक्टिविटीज या मैंने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ चीजें करी हैं, वो लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं और उससे कंपेयर करते हैं कि अगर उस पे प्लेटफॉर्म पे ऐसा हुआ तो हमारे क्यों नहीं हो सकता. तो अभी तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें सुनता हूँ, लोगों ने ये एक एक्सक्यूज बना लिया. सो द सैड पार्ट इज, द वेरी सैड पार्ट इज, they will use it. Those two jerks, those two criminals, killers who killed Kanhaiya Lal, they will use these statements of a Supreme Court judge, the verdict that has been passed by Supreme Court against
और इन देयर ओन फेवर, कि वहां पर देखो जज ने भी यही डिसीजन दिया है कि शी वॉज रॉन्ग बिकॉज शी रियली इंस्टिगेटेड अ लॉट ऑफ पीपल। और अब ये उस चीज को यूज करेंगे ये कहने के लिए कि हम लोग इंस्टिगेट हो गए थे, क्योंकि इतनी बड़ी बात हमारे भगवान के लिए बोली गई तो आप कैसे इसको कर सकते हैं। दे विल ट्राई टू जस्टिफाई द किलिंग of Kanhaiya Lal, which is going to be very, very sad. So that's what I'm saying. Let's all focus. Let's all get back to why we all came here. We all came here for Sushant. We all did not come for political parties. At least on this platform, I'm going to make sure, that I keep a check on this. मैंने पहले भी बोला था, I am really done with any kind of pleasing activities. Yes, everybody is welcome on this platform. Share your views, share your opinions, but if you are unbiased and unopinionated, yes, you will be welcome. But if you really want to just go in one single direction और उसके basis पे आप सब लोगों को you're ready to bash, that's not gonna happen here. So यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि unfortunately the death of कन्हैया लाल has also invoked a lot of sad emotions। और मैं फिर वही कहूँगा एक बार, मैंने ट्विटर पे 2 दिन से कह रहा हूँ, थैंक्स टू जयपुर डायलॉग्स एंड संजय दीक्षित जी, जिन्होंने आई थिंक स्टार्टेड शेयरिंग दैट पर्टिकुलर पेज। प्लीज इन एनी विच वे एंड फॉर्म, चाहे आप 1 रुपए से लेके 100 रुपए से लेके कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू दैट पुअर टेलर्स फैमिली, प्लीज डू दैट। इट्स अ ग्रेट एफर्ट। द सिंगल ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, जिसको बिना किसी मतलब के मार दिया गया, इतना ब्रूटली मारा गया जस्ट बिकॉज उसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट दिखाया ऑन इन पब्लिक, that is not justified. Any such activity is not justified, and for their agenda, and we'll use it for now. Exactly, absolutely, and इसीलिए आई रियली वांटेड टू टच ऑन दिस नाउ। जहां तक रही महाराष्ट्र की बात, again I want to remind everyone, and I will continue to remind each one of you again and again and again till the time आप लोग we all get back to the same phase, the same stage, which is uh, we didn't come here for pleasing or appeasing any political party, political leader, or whatever you want to say it. हम यहाँ आए थे सुशांत की जस्टिस फाइट के लिए, एंड वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन दैट। एटलीस्ट आई विल ट्राई और आई विल इंश्योर कि हम लोग इन पॉलिटिक्स में, इन पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर और ज्यादा ना जाएं, एंड वी स्टे फोकस्ड ऑन सुशांत जस्टिस, बिकॉज एंड ऑफ द डे जस्टिस सुशांत को दिलानी है, उसके लिए वी नीड ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, एवरीबडी। सो अब वो लोग जो कहते थे कि पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होगा, वो पॉलिटिकल सिनारियो चेंज होने से सुशांत को जस्टिस मिलेगी। नाउ इज द टाइम टू सी व्हाट हैपेंस। अब हम उनको क्वेश्चन करेंगे जिनको पावर चाहिए थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि वी वर इन पावर, वी विल गेट यू द जस्टिस। नाउ विल जस्टिस बी सर्व्ड टू सुशांत? Will justice be served to Disha Salyan? Will justice be served to Jia Khan? The bigger question should be around those, and we need to target these questions directly to these leaders now who have come back in power. और इसी वजह से हम लोगों ने इतनी सारी मूवमेंट्स करी, इतनी सारे हमने प्रोटेस्ट ऑनलाइन, डिजिटल एंड व्हाट नॉट। हमने उन लोगों को भी सपोर्ट किया जो कहते थे कि हाँ, सुशांत के उसका मर्डर हुआ है, सुशांत को जस्टिस मिलनी चाहिए, बट वी नीड टू बी इन द पावर। सो नाउ इज द अपॉर्चुनिटी, नाउ इज द टाइम फॉर देम टू शोकेस whether right now they will get justice for Sushant. So हम लोगों को उस पर फोकस करना है। We have seen too many political drama. Jill, that's one of the reasons why uh, I wanted to do this session, this quick, absolutely। Shrabani ji, Shri Devi too, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, सबके साथ जस्टिस होनी चाहिए। So Jill, that's the problem.
वी कैन नॉट ट्रस्ट एनी पॉलिटिशियन, एब्सोल्युटली ट्रू, वी कैन नॉट। बट अगर हम किसी भी पार्टी, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी लीडर को अगर हम नहीं उस नजरिए से देखेंगे, नहीं उस तरह का सपोर्ट देंगे, देन यू नो आवर फाइट विल एंड लाइक इन अ बैड स्पॉट। तो हमें लोगों से होप तो रखनी ही पड़ेगी। हम लीडर से इतनी होप लेके बैठे हैं, राइट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स टू चीफ मिनिस्टर्स टू होम मिनिस्टर्स, हमने हर किसी एजेंसीज को भी हमने दरवाजे खड़खड़ाए, उनको भी उठाने की कोशिश की। अभी तक तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है। बट अगेन आई एम गोइंग गो बैक टू द सेम पॉइंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच में भी बैठे हैं जो हमेशा कहते हैं कि यू नो व्हाट, this thing will change once this particular leader, this particular party comes in power. Now they have an opportunity, now they have the power, the focus, everything to get justice for Sushant. Now are we ready to ask them the same questions that we were asking the previous government? Are you with me on this? Are you gonna do that, or are you gonna just say, you know what, कि अब ये पार्टी तो आ गई है, पर अब इनका भी वही काम है, सो यू नो लेट्स जस्ट फोकस ऑन सुशांत सिंह राजपूत? आई एम नॉट गोना डू दैट. I have spoken against everybody when the previous government was there, and I am ready to speak against anybody now as well, चाहे वो प्रो हो, चाहे वो whatever इस पार्टी का हो ना हो, क्योंकि पार्टीज ने किसी ने कुछ नहीं करना. नाउ देर आर पीपल इन पावर हु कैन, हु हैड प्रूफ्स. ये वही लोग हैं जिन्होंने यूएसबी ड्राइव्स तक दिखाई, इन्होंने ये भी कहा कि यू नो व्हाट, वी विल गिव इट टू द सीबीआई एंड नाउ विल वेट. अब तो पावर भी है, जाओ अब जाके मिलो दिशा की मॉम पेरेंट्स को, जाके बात करो, उनको सिक्योरिटी दो, मेक श्योर दे हैव द पॉलिटिकल सपोर्ट. नाउ इज द टाइम टू गेट जस्टिस फॉर दिशा सालियान. विल शी गेट जस्टिस नाउ? अब श्रीदेवी के केस को कौन, ये जो सारा का सारा बॉलीवुड कबाल जो आज की डेट में दे आर सपोर्टिंग, वो ट्वीट्स भेज रहे हैं. यू नो आई वाज I mean, I should not say shocked, but yes, I was sad to see all the Bollywood, these actors and actresses tweeting in favor of Uddhav Thackeray. So, this is really sad to see. This is really sad to see कि इस तरह से पूरा का पूरा Bollywood cabal will get together to show support for the father, Papa Penguin. I don't believe the change will suddenly give justice. We have to question them. Exactly, संयुक्ता जी, यही मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तो क्वेश्चन अब वहां भी करूंगा. मैंने तो पहले भी किया था. मैंने तो अपने आप को बेबी पेंगुइन से भी ब्लॉक करवाया था और बहुत सारे लोगों से ब्लॉक करवाया था. अब पार्टी बदल गई तो उससे मेरी इंटेंशन तो नहीं बदली. मेरी इंटेंशन तो तब भी वही थी, आई नीड जस्टिस फॉर सुशांत. मेरी इंटेंशन आज भी वही है, आई नीड एंड आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत. तो मैं तो अब अगली पार्टी को भी पूछूंगा, अगर अब उसके ऊपर भी मुझे किसी ने ट्रोल करना है या किसी ने अब्यूज करना है, बी माई गेस्ट. आई गिव अ डैम, बिकॉज एंड ऑफ द डे मैं यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो आया नहीं था बॉस. मैं आया था यहाँ सुशांत के लिए. सुशांत की फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, हमेशा करता रहा हूँ, आगे भी करूंगा. एंड दैट्स व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चेंज, कि नाउ अब मैं वो देखना चाहूंगा कि कौन सी जिप ड्राइव कहाँ पर लगा के हमें वीडियो एविडेंसेस दिखाए जाते हैं, कौन से ऑडियो एविडेंसेस हमें सुनाए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होते हैं या सीबीआई के साथ सबमिट होते हैं. आई डोंट रियली केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. ऑल आई केयर अबाउट इज नाउ यू हैव द पावर. नाउ लेट्स सी. मुंबई में फ्लड्स आ रहे हैं, बारिश हो रही है, सड़कें टूट रही हैं. दैट्स अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट प्रॉब्लम. वो वहां की पॉलिटिक्स, वो वहां के लोग देखेंगे, वहां की गवर्नमेंट देखेगी. Most important right now, since you have the power and you really wanted this for Sushant's justice, ये बिहार के टाइम पे भी हुआ था. बिहार में यही कहा गया था कि हम सुशांत की जस्टिस के लिए लड़ेंगे, हम फाइट करेंगे, विल गेट इट. कब पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स की वो करके निकल गए, वोट्स लिए, सब गेम खत्म. नाउ इफ द सेम थिंग हैपेंस इन महाराष्ट्र, आई थिंक कई लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए. सो आई एम होपफुल, आई एम रियली होपफुल that something will happen. I'm keeping my fingers crossed. I have high hopes, क्योंकि बहुत होप्स दिखाई गई थी, बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए थे. हमारे खुद के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा
कि ये तो हर साल का है वाटर लॉकिंग, नथिंग न्यू। एग्जैक्टली सेम था जी। तो इस चीज को लेट्स नॉट मिक्स विद सुशांत मूवमेंट इज व्हाट माय गोल इज गोना बी, क्योंकि यहाँ पर अभी लोग ये ड्रामा भी शुरू करेंगे कि गवर्नमेंट तो आ गई है बट उनको अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना है, अभी उनको जॉब्स के ऊपर फोकस करना है, अभी उनको बाकी चीज़ों पे फोकस करना है। सुशांत नहीं, सुशांत बहुत बड़ा इशू था। सुशांत को बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने टॉपिक बना के उन डिफरेंट विधानसभाओं और जगह जगह पर उसको यूज किया, सुशांत के नाम को। नाउ इट्स पे बैक टाइम, यू यूज्ड हिज नेम, now you need to do something for him. It cannot be one way. बहुत लोगों ने, मुंबई से बहुत वॉरियर्स हैं, महाराष्ट्र में बहुत वॉरियर्स हैं जो बहुत डरते थे। ये वो लोग हैं जो सड़क पे उतरने के लिए भी डरते थे, आज भी डरते हैं कि पता नहीं कौन क्या कब कैसे उठा के ले जाएगा। नाउ since the government has changed, I would love to see all those warriors coming down on the streets, raising their voice against these criminals जिन्होंने सुशांत को मारा। And I would love to see the current government support them, wholeheartedly। और जो evidences watch up हुए, जो चीजें भी हुई, जितना जो है अभी उसके basis पे, I would love to see the judgment come out. I want to see the verdict out. I want to see these criminals behind bars. वो रिया चक्रवर्ती जो, मुझे नहीं समझ आ रही कि हाउ इज शी इवन एबल टू सर्वाइव। समबडी सेंट मी a cake cutting photograph of hers. The moment I see, जब भी मैं उसकी शक्ल देखता हूँ या रिसेंट अगर कोई देखता हूँ, आई जस्ट हिट्स मी इन द गट। बहुत बुरा लगता है, बहुत ही खुंदक आती है। सिर्फ एक चीज ध्यान में आती है, सुशांत डैड जो हमेशा अपने बेटे के बर्थडे के लिए यू नो सेलिब्रेट करते होंगे, खुशियां मनाते होंगे, कोई भी माइलस्टोन, कोई भी ऐसी लाइफ की चीज होती है उसको इंजॉय करते होंगे अपने बच्चे के साथ। व्हाट एंड हाउ वुड ही बी फीलिंग एवरी सिंगल ईयर? 2 साल हो चुके हैं सुशांत को गए हुए, कोई कोई एक भी कहते ना, एक ऐसा मोमेंट नहीं आया सुशांत के डैड के लिए जहां वो कहें कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है, रिया चक्रवर्ती जेल में है या उसका भाई जेल में है या उसके पेरेंट्स जेल में है। Nothing of that sort is happening, which is very sickening, which is very, very sickening. Versus रिया चक्रवर्ती जो बाहर भी जाना चाहती है, मूवीज भी शूटिंग करना चाहती है और कर भी रही है, celebrating her birthdays with her besties and whatnot. It boils my blood. It really boils my blood. And this is not acceptable, not even to क्या कहते हैं, to any parent, to those sisters जो बैठ के जंतर मंतर पर they're protesting for their brother's justice. This is so sad, this is so sickening as well कि एक तरफ ये फैमिली अपने भाई की डेथ के लिए रोज सुबह मैं देखता हूँ, विदाउट फेल, how Priyanka Di is giving taglines, she's sharing information, she's giving us all a lot of information through her taglines, versus Riya Chakravarti, who's celebrating her life, who's celebrating every single day moment, and she will, she gets so much support, चाहे वो बॉलीवुड वालों से हो, चाहे वो कहीं से हो, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अब तो पॉलिटिकली भी शी इज द सेम वन हु सेड आई डोंट इवन नो आदित्य ठाकरे, मैंने तो टीवी में जितना देखा है उतना, एंड नाउ शी इज ट्वीटिंग एंड विशिंग आदित्य ठाकरे आल्सो बर्थडेज एंड व्हाट नॉट। तो अब आपका जान पहचान क्या टीवी के थ्रू इतना बन गया कि आप उनको विशेष भी भेजते हैं। सो all the bullshit that Riya Chakravarti has done, she needs to pay. She needs to pay back, and she really needs to rot in hell. Is all I can say for her. क्योंकि every single time she's celebrating her day or celebrate किसी भी चीज को celebrate कर रही है, it really hurts. It really hurts a lot. And yes, absolutely, उद्धव ने शिंदे को शिवना से आउट कर दिया है। Prayers will not go in vain. इनको हमारी बद्दुआ मिलेगी। Absolutely. Now, ये अभय जैसे अब लिख रहे हैं यहाँ पर, उद्धव को शिव सेना से एक नाथ शिंदे को आउट कर दिया है। Again, I want to reiterate.
यहाँ पर बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल गेम चल रही है, समथिंग विच मे बी अ लॉट ऑफ अस वोंट इवन अंडरस्टैंड। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं यहाँ क्या बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, किस चीज की तैयारी हो रही है। इज इट अ बिगर पिक्चर दैट फॉर द मेन इलेक्शंस जो 2024 में, आई डोंट नो। So we should hold off all our horses. We should not jump to any kind of conclusions. Uh, मैंने सिर्फ सुना है को अभी वो देखेंगे जुलाई को शौविक और ताई का सामान गया है, मैंने इसे सुना है बट आई एम नॉट श्योर, सो आई विल चेक व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, लेट मी जस्ट टेक जैस्मिन जी। सत श्री अकाल एंड वेलकम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? यस, आर यू एबल टू हियर मी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल वरुण जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस। आई डिडंट नो कि आप थोड़ा वो मूविंग में और अपना न्यू प्लेस में बिजी थे। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू फॉर विद बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, ये जो भी आज का टॉपिक है, ऑफ हाँ कोर्स जी, ये वर्डिक्शन पे डिपेंड है। लेकिन मैं ज़रा अभी आप थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी जो भी ब्रूटल किलिंग्स हुई हैं अभी तक की बॉलीवुड में, आपने कुछ नाम लिए हैं जैसे जिया खान एंड हाँ ऑफ जी। कोर्स आवर बिलव्ड सुशांत सिंह राजपूत एंड दिशा एंड श्रीदेवी जी के लिए भी। तो मैं थोड़ा-सा मतलब कि वही आप कह रहे थे ना कि एकदम इट बेसिकली हिट्स अस अ, राइट इन आवर हार्ट जब हम ये बॉलीवुड के ऑब्वियसली ये लोग कल्प्रिट्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जिनको कि हम सो कॉल्ड एक्टर्स या सेलिब्रिटी कहते हैं, बट बेसिकली वी नो व्हाट्स द ट्रुथ। तो मैं सिर्फ लाइक माय टेक एंड माय लिटिल बिट ऑफ माय शेयरिंग माय ओपिनियन बेस्ड ऑन दिस इज़ कि थोड़ा मैं श्रीदेवी जी के लिए ऐसे बोलूँगी। ऑफ कोर्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस शी वाज़ एंड देन यू नो ओवरऑल हर करियर एंड ऑल दैट इन बॉलीवुड। ऑफ कोर्स अब चाहे उनके लिए भी इतनी बड़ी इन्होंने मिस्ट्री बना दी उनकी डेथ को भी और सब कुछ है। बट क्या किसी एंगल से इन सब लोगों की डेथ कोई आपको कहीं से भी किसी एंगल से नेचुरल डेथ लगी है? डेफिनिटली नॉट। It was all unnatural, meaning pre-planned murder, right? In like Yes, plain simple absolutely. words, we can say. अब Absolutely. उनके लिए देख लीजिए तो basically when Shri Devi ji died, I remember exactly she passed away back in 2018 in the month of February, and right after her death, her untimely demise, 3 महीने बाद ही आपको पता है कि उनके घर में एक वेडिंग थी, of course सोनम कपूर। Right. वहाँ से Yep. अंदाजा लगाइए कि ये लोग बेसिकली वो सिर्फ मैरिज को एंजॉय नहीं कर रहे थे, दे वर ऑन द अदर हैंड सेलिब्रेटिंग हर डेथ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। राइट। और Yep. इस बात पे सभी अग्री करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगेन एन इनोसेंट सोल, और उनको भी इसी तरह से। लेकिन ये सब प्लॉट किया जाता है, नहीं तो आप खुद सोचिए इतनी मिस हैपनिंग्स हुई हैं, चाहे वो दिशा है, जिया खान है, सुशांत है, सबको बॉम्बे में यानी मुंबई के अंदर ही इनके दे वर किल्ड एंड देन ब्रूटली गॉट मर्डर्ड। व्हाटएवर द सिनेरियो एंड द केस वाज़, हमें सब पता है, पेंडेमिक है, ये है, वो है, सब है। बट जब भी ये लोग कुछ प्लॉट करते हैं बॉलीवुड के क्रिमिनल्स मिलके, जब भी इनका जो भी षड्यंत्र होता है या ये जो भी बैठ के प्लानिंग्स करते हैं, आप खुद देखिए कि वो जो वेडिंग थी वो दुबई की जगह यहाँ पे भी हो सकती थी, बट इट वाज़ ऑल प्लान्ड। और आई थिंक आपका एक एक नहीं बहुत सारे सेशंस श्रीदेवी जी को लेके भी हुए थे। Yep. आई रिमेम्बर एग्जैक्टली कि इनका मकसद यही था कि बेसिकली तो उनको मारना ही था, लेकिन दुबई में ले जाके सब प्लॉट करके उनको अकेला छोड़ के, तो मतलब जितना मर्जी आप कहानियां बना लीजिए, ट्रुथ हैज टू कम and later or sooner, and it will come and it shall prevail in that manner which it was। तो आज 4 साल हो गए हैं उनके डिमाइस को, तो क्या दुनिया भूल गई? जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, वो कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे 4 साल पहले की ट्रेजेडी हो चाहे 10 साल पहले की। बिल्कुल,
तो बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए नहीं थोड़ा-सा नहीं, आपने आपने बिल्कुल मेंशन किया। की तो मुझे एकदम मतलब कि लगा कि मैं श्रीदेवी जी के लिए भी ऐसे थोड़ा-सा मतलब बात करना चाह रही थी, अपना ओपिनियन शेयर। और ऑफ कोर्स आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने जैसे कहा कि मैं तो सिर्फ़ सुशांत के लिए ही जस्टिस के लिए आया था और चाहे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मर्ज़ी एजेंडे रहें, जो मर्ज़ी इधर-उधर उथल-पुथल हो, चेंजेज़ हों, हमारा डिसीज़न एक ही है कि वी स्टूड एंड वी स्टैंड for truth till we get justice, no matter what. Jia Khan, Sushant Singh Rajput, and of course their family members and Disha. तो अगर वो दिशा के पेरेंट्स से भी जाके आस्क करें, उनसे भी जाके बैठ के बात करें, तो अब उनको वाक़ई एक पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना चाहिए जो उनको अपनी बेटी के टाइम आज से 2 साल पहले नहीं मिल पाया और 8 जून से वो बेचारे भी एक तरह के क्यू में हैं, चाहे डर के ही बैठे हैं अपने घर में, लेकिन डराया-धमकाया तो गया है ना, नहीं तो या कौन बंदा आगे आके जस्टिस नहीं लेगा, आप खुद सोचिए। उनकी भी बेटी की एब्सोल्युटली। जान गई है, इतना ब्रूटली उसके साथ सब कुछ हादसा हुआ है। तो ये सब हादसे हैं जिनको हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं और आप एक ऐसा ज़रिया हैं जिसके लिए हम आप एक मीडिया हैं जिसके मतलब ज़रिए हम लोग आपके साथ और आपके व्यूअर्स ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। आज मतलब कि वही बात है कि आई ऑलवेज़ गेट एक्चुअली अ चिल, गूज़बम्प्स चाहे मैं आप ये देखिए 1993 की बात है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, दिव्या भारती के टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। आई एम श्योर उससे पहले भी होती होंगी और उनके टाइम में भी ये चीज़ें मतलब इंटरनेट वगैरह सोशल मीडिया इतना एक्टिव और इतना फ़ास्ट नहीं था टेक्नोलॉजिकल थिंग। नहीं तो आप देखिए, उनके लिए भी कोई ना कोई जस्टिस की माँग उसी टाइम से होने लग गया, क्योंकि उनको भी सिर्फ़ इसलिए ही मारा था। उनके लिए भी यही एक्सक्यूज़ बनाया था एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, आपको पता ही होगा सो कॉल्ड जो भी वो भी यप। बंदे का नाम है, कि वो गिर गई, वो भी वहाँ पे कंपाउंड में उन्होंने भी ऐसे धक्का दे दिया या कुछ है, तो बेसिकली करेक्ट। हमें तो पता ही था कि वो क्या है, क्या नहीं। उनके भी या पेरेंट्स डर के मारे कभी जस्टिस मिली, मतलब वो भी डरे ही बैठे हुए थे। ये सब या उनको स्क्रिप्ट करके बता दिया जाता है कि आपने मीडिया के आगे क्या बोलना, लेकिन इनके पीछे बेसिकली उनको भी अपनी क्योंकि जान तो सबको प्यारी है ना एट लास्ट, तो वो भी कभी राइट। बेचारी दिव्या भारती के लिए जस्टिस की माँग कर ही नहीं सके। जबकि उनको भी अपनी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए था, उनको भी पता है कि उनके अपने ही सो कॉल्ड सन इन लॉ ने अपनी वाइफ को ऐसे-ऐसे टारगेट कर भई मारा है या मरवाया है, क्योंकि ही वाज़ आल्सो दैट सो कॉल्ड fellow was also involved in some kind of explosion which happened at that time in Mumbai. बहुत बिल्कुल। डेवास्टेटिंग एंड सिचुएशंस आई हो थिंक जाती दैट हैं वाज वन ऑफ द रीजंस जो दिव्या भारती के साथ जो हुआ, ना। क्योंकि राइट, दिव्या भारती शायद उसको डिस्क्लोज कुछ करना चाहती थी, और राइट, just because of the threat, we did couple of sessions, और जैसे आपने पहले भी कहा, हाँ श्रीदेवी जी, के केस के लिए भी हमने एनके सूद को जब बुलाया था, जिन्होंने एक्चुअल में अपनी टीम के लोगों को भेजा भी था वहां पर उस होटल में, और बहुत सारी रिसर्च उन्होंने की थी, और उनके खुद के भी वीडियोस है और हमारे साथ भी उन्होंने शेयर किया था। इट्स अ वेरी क्लियर कट केस ऑफ अ मर्डर। इट इज नॉट इवन पॉसिबल कि, और वो भी आपने बिल्कुल सही बात की, सोनम कपूर की जो शादी थी, इनको इन इन और कहने को ये पंजाबी फैमिली है, जहां राइट। पर 1 साल तक तो वैसे ही कोई ऐसी चीज कोई बात होती नहीं है। दे वर जस्ट hell bent on first killing her and then celebrating कि चलो हमारा एक रास्ते का कांटा निकल गया। हाँ जी, ये बात मैं कहने ही लगी थी कि अगर आप कस्टम एंड ट्रेडिशन भी देखिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, हम पंजाबी हैं या हम हिंदू हैं या जो भी हैं, लेकिन 1 साल तक तो वैसे भी हमारे घर में भी इवन ट्रेजेडी हो जाए, पहला साल ऐसा होता है कि बंदे को ना तो कोई खुशी मतलब नसीब करने का दिल करता है, ना कोई खुशी सेलिब्रेट करने का दिल करता है, कुछ भी नहीं मतलब कि इतनी मायूसी छाई होती है। तो दे वर जस्ट वेटिंग फॉर हर बेसिकली कि भई कुछ ऐसा हादसा और हम कामयाब हो जाएँ बेसिकली उस हादसे को करने में एंड देन वी विल गोना सेलिब्रेट बट ऑन द अदर हैंड इट वाज़ सेलिब्रेटिंग और आप देखिए डॉटर्स हैं, जानवी कपूर है, खुशी कपूर है, दे आर लाइक सो नॉर्मल। दे या आर मतलब अपनी मदर के जस्टिस की तो बात दूर-दूर तक कहीं नहीं है। दे आर सो हैप्पी विथ देयर फादर एन्जॉयिंग एवरी बिट ऑफ देयर लाइफ। आप खुद सोचिए कुछ छोटी-छोटी 2-2 4-4 साल की बेटियाँ नहीं हैं 25-26 साल के मतलब आप सोचिए 10 साल के एक बच्चे को इतनी अकल होती है लेकिन 25-26 साल का एक टीनेजर और जो कि बंदा मूवीज़ में एंटर कर चुकी हैं ये दोनों लड़कियाँ,
इनको Yeah. कोई मतलब परवाह ही नहीं है कि हमारी मदर मतलब बेचारी के साथ क्या हो गया और हमारे हमारे खुद के डैड ने ऐसे कर दिया। दे आर नॉट बॉदर्ड एट ऑल इन एनी वे। सो सैड टू सी। मतलब हमें Right. दुख होता है जबकि हमारी कोई उनसे बेचारों से रिश्तेदारी नहीं, कोई लेना देना नहीं, लेकिन कहते हैं ना ह्यूमन बेस पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो ह्यूमैनिटी का रिश्ता तो रखते हैं ना। तो ये Right. इंसान का रिश्ता है जो हमारा सबसे जुड़ा हुआ है। आपके भी यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम किसी के कोई कुछ लगते नहीं थे, लेकिन जब से आपको जाना है, जब से व्यूअर्स से मिले हैं, तो एक इंसानियत के ही, तो वही कहते हैं ना, चाहे आपका किसी के साथ ब्लड रिलेशन हो या ना हो, आपका एक जो दुनियावी रिश्ता है वो ह्यूमैनिटी का है। अगर वो ही बिल्कुल। नहीं है तो हम किस बात के इंसान हैं। ज़मीर मर चुका है इन लोगों का, आप ये देखिए। पैसों के चक्कर में, पावर के चक्कर में सब मार दिए इन लोगों ने। आप तो लोगों को भी ऐसे मारते हैं जैसे कोई या वैल्यू ही नहीं। वो जो पैसों की जगह है ना, मतलब जो इंसान की जगह होनी चाहिए, वो पैसों ने ले ली है। और आपको याद होगा एक सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड मतलब एक और भी वीडियो आई थी, जहाँ पे उन्होंने मेरा ख़्याल किसी ने उनके लिए इतना अच्छा बोला था, मुझे नाम नहीं याद। कोई मेल पर्सन ही थे। उन्होंने यहाँ तक कहा, कहते हैं सुशांत सिंह राजपूत का अचीवमेंट जब उन्हें अवार्ड मिला जाता था या उनकी तारीफ़ हुआ करती थी बॉलीवुड के अंदर, उनकी एक्टिंग स्किल्स, डांसिंग स्किल्स को लेके, तो वो ये कहते थे, मतलब सुशांत वो खुद ये कहते थे कि मैं मतलब कि ये जो कामयाबी है कहीं मेरे सिर पे ना चढ़ के बोले, तो मैं इसको किस तरीके से नीचे रखता हूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है मेरे घर में, उसमें मैं सब अवार्ड्स वगैरह डाल देता हूँ या अपने जितने अप्रिसिएशन के नोट्स हैं वो डाल देता हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों ने वॉच की होगी, ये उन्हीं के टाइम पे ये सब चीज़ें शेयर हुई थी मीडिया के थ्रू। कहते हैं कि इससे ये मतलब नहीं है कि मुझे मेरी कामयाबी नहीं पता या मैंने जो हासिल किया आज तक ज़िंदगी में वो नहीं पता, लेकिन ये मेरा एक तरीका है कि ये पैसा और ये कामयाबी सिर के ऊपर ना चली जाए। जहाँ बंदे की ज़रूरत है वहाँ बंदा रहे, जहाँ पैसे की ज़रूरत है एक स्टेबिलिटी रहे। तो उन्हें बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता था अपने करियर को और अपनी अचीवमेंट्स को। कितनी अच्छी बात है, मतलब दिल खुश हो गया। तो मैं आपको, हाँ, ये हमने आई थिंक 2020 जब हुआ ही था सुशांत का, उस हाँ टाइम जी, हमने बात की थी, पढ़ी भी थी। सुशांत के पास जो बॉक्स था वो एक कॉफिन शेप का था। हाँ तो जी, उसके अंदर वो सारे के सारे अवार्ड्स और सब ये डाल देते थे, क्योंकि ही रियली वांटेड, you're एब्सोल्युटली राइट, कि वो कहीं सिर पे ना चढ़ जाए या अवार्ड्स देख के, जैसे कुछ और ऐसे एक्टर्स हैं और ऐसे अपने आप को जो स्टार्स मानते हैं, दे पुट इट राइट इन देयर मेन रूम, जो एक उनका खुद का रूम होता है उसके आसपास, ताकि दे कैन ग्लोट इन द ग्लोरी ऑफ दोज अवार्ड्स। वर्सेस सुशांत, जो अपने काम पे फोकस करना चाहता था, तो वो जो भी अवार्ड लाता था वो उस कॉफिन शेप बॉक्स में डाल देता था, एंड दैट वाज हु सुशांत वाज। हाँ जी। और ये सब करने के लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। नहीं तो आप देखिए ज़रा-सी हमें कोई शाबाशी देता है, कोई वेल डन कहता है, मतलब हमें तो लगता है जैसे हम पता नहीं वी आर लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, स्काई हाई हो करेक्ट। जाता है। लेकिन वही कहते हैं ना, ठहराव बहुत ज़रूरी है। सो ही वाज़ रियली अ वेरी जेन्युइन, हम्बल एंड वेल ग्राउंडेड ह्यूमन बीइंग। और वही कहते हैं पैर ज़मीन पे रहें, तो फिर क्या बात है। ज़िंदगी जीने का मज़ा ही अलग है। राइट, बंदे राइट, के ऊपर और उसकी चाहे फैमिली है चाहे कुछ, उन्होंने सिर्फ फैमिली को सर मत्थे नहीं किया, मतलब वही जैसे हमारे पंजाबियों में भी कह देते हैं, लेकिन उन्होंने बंदों के साथ साथ और चीजें क्या सर मत्थे की कि अगर मेरा किसी से खून का रिश्ता नहीं भी है, मैं सबको एक बराबर समझूं, एक समान है, तो अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी विच बेसिकली सेड इट ऑल, मीनिंग उनकी ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना पूरी कायनात में चीज फैलती है, तो उनके एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन के अंदर उन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब करना भी उनको बहुत अच्छी तरह आता था। नहीं तो कई बार हम इतना बोल जाते हैं फिर भी हम असली लाइन को टच नहीं कर पाते। कई लोग एक ही लाइन बोलते हैं उसमें ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी बता देते हैं कि हम क्या थे और आज क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, मतलब एब्सोल्युटली। और काबिल-ए-तारीफ़ है। हाँ जी, सॉरी, क्या हाँ कहा? जी, क्या मतलब कि काबिल-ए-तारीफ़ है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, नहीं, अब सुशांत के बारे में और सुशांत की चीज़ों के बारे में तो हम जितना बात करें कम है। हाँ बट जी, ये जो आपने आज दोबारा से कुछ ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपने बात की, आई हाँ थिंक जी, दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो तो मैंने आई बीन आउट ऑफ द सोशल मीडिया, बट मैं फिर भी पढ़ रहा था, देख रहा था, न्यूज़ सुन रहा था।
ये पॉलिटिकल जो भी ड्रामा चल रहा है, राइट, आई मीन वी शुड ऑल कीप आवर फोकस ऑन सुशांत, सुशांत की जस्टिस। क्योंकि ये पॉलिटिकल ड्रामा तो हर पार्टी खेलेगी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कभी भी पावर में आए। बट एंड ऑफ द डे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पावर में आने से अगर हमारे को फायदा होता है, जिया को, श्रीदेवी को, दिशा को, सुशांत को जस्टिस मिलती है, और बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जिनके नाम भी नहीं है, वी कंप्लीटली फॉरगॉटन। अगर मैं वो बात करूं, हमने कितने सारे और लोगों को के बारे में सुना, मनसुख हिरेन, उसको भी तो जस्टिस, उसकी फैमिली को भी तो एक जस्टिस की वेट होगी। उसको भी तो इतना कोल्ड ब्लडेड वे में मार दिया गया, मतलब उसका अगर सुने दोबारा से और बात करें, हाउ ब्रूटली दे मर्डर्ड हिम, थ्रू हिम, मुंह बंद करके उसका, उसको पानी में ऐसे फेंक देना। आई मीन क्या लाइफ, क्या वैल्यू ही नहीं है। किसी ने भी मतलब इनमें से किसी का ज़मीर बचा ही नहीं है। सो दैट इज वेरी सैड, बट लेट्स कीप आवर होप्स हाई, लेट्स कीप ऑन प्रेइंग, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं इतना सारा टर्मोइल, इतना सारे चेंजेस जो सब कुछ हो रहे हैं, वो आई थिंक स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ सुशांत वो खुद ही करवा रहा है, खुद ही सब कुछ देख रहा है। We just have to be patient, we have to keep on supporting each other, और फैमिली के साथ रहो, फैमिली को जरूर सपोर्ट दो, एवरी सिंगल टाइम आई से दैट। क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली द फैमिली इज स्टिल अंडर टारगेट, द फैमिली इज कंटिन्यूअसली बीइंग अब्यूज्ड, बट थोड़ा सा समझो, एंड ऑफ द डे दैट फैमिली हैज लॉस्ट देयर बॉय। अगर हाँ उनको अगर उनको इस फाइट के अंदर कुछ मिलना होता या कोई पर्सनल गेन होता, वो अब तक कर चुके होते, वो साइड कर हो गए होते, वो किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। बट दे आर स्टिल फाइटिंग, दे आर सिटिंग डाउन एट जंतर मंतर, वहां जाके रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रियंका दी टैग लाइन्स देती हैं, लुक एट द ग्रिट दे हैव, दे द विल पावर, कि वो इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हैं टिल दे गेट जस्टिस फॉर देयर ब्रदर। तो शेम ऑन दोस पीपल। मैं तो वही एक बार फिर कहूंगा, लेट्स कीप ऑन सपोर्टिंग द फैमिली एंड स्टॉप अब्यूजिंग कि सिस्टर्स नहीं कुछ कर रही। एंड सुशांत, आई मीन सुशांत इज द एपिटोमी ऑफ होप। मैं तो यही कहूंगा, एक नो वन होके भी उसने अपना मूवी इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, हर जगह नाम बनाया था। हिज हार्ड वर्क स्पोक फॉर हिम, his patience, his love for people, his love for humanity, set him apart. Unfortunately हमारे लिए, कि हम जब वो हमारे बीच में था, हमने उसकी वैल्यू नहीं जानी। अब हमने जब जान लिया तो कम से कम अब तो उसको सपोर्ट दे दो, उस टाइम तो नहीं दिया, कम से कम अब तो उसको सपोर्ट दे दो। बिल्कुल सही कहा। एंड ही वाज़ अ ऑल-राउंडर गाय, जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट करता है ये एक वर्ड, कि ही वाज़ ऑल इन वन एंड अ वेरी यूनिक पर्सनैलिटी। और वही बात है कि आपकी बिल्कुल सही बात है कि ट्रोल क्यों करा जा रहा है फैमिली को, सिस्टर्स को। मतलब वही तो बात है, हम सुशांत सिंह राजपूत को नहीं ला सकते, लेकिन एक न्याय की माँग कर रहे हैं पहले दिन से। आज 2 साल से ऊपर हो गया, बल्कि देखा जाए तो जुलाई ऑफ 2022 में कदम रख दिया हमने। 2 साल पूरे होके उसका भी अगला सिरा शुरू हो गया, और अभी भी जस्टिस वहीं पर ही है। लेकिन हमें एक हर दिन कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, तो हमें हमेशा यही उम्मीद होती है, चलो सीबीआई, जितनी भी ये हाई फाई एजेंसीज हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनको ह्यूमिलेट करने की बजाय बस एक जवाब का इंतजार है। और वो जवाब, वो ऑफ कोर्स उन्होंने ही देना है। लेकिन किसी की फैमिली को, किसी के बच्चों को, किसी को ट्रोल मत करो, क्योंकि जो उन्होंने खोया है हम फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा दिल उनके तरह, तो हम फील कर रहे हैं। लेकिन कहीं आप ये बॉलीवुड वाले लोगों को देखो, इनको तो कुछ नहीं होता, इनके अपने घर वाले चले जाते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको तो बस अपनी एक कंफर्ट जोन ही नहीं, उन्हीं से बाहर नहीं निकल आते। क्यों? क्योंकि ये अपनी लग्जरीज को नहीं छोड़ना चाहते, तभी इनके बंदों के साथ छूट जाते हैं, और ये अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते। नहीं तो आप मुझे बताओ, कौन सी ऐसी बेटी, कौन सा ऐसा बेटा होगा अपने पेरेंट्स की मतलब डेथ का या उनके मर्डर का बदला नहीं लेना चाहेंगे, उनके लिए खड़े नहीं हो पाएंगे, उनके क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेंगे। ये सब, ये जितना भी एक तरह का गलत काम होता है, ये सिर्फ बॉलीवुड वालों से ही एक्सपेक्टेड है, और वो लोग करते हैं, जिसे कहते हैं सिर चढ़ के करते हैं। लेकिन कोई भी बंदा, क्योंकि ये इनकी कवरेज रखी हुई है इन्होंने, अपने दायरे से बाहर नहीं जाते अपनी कंफर्ट जोन छोड़ के।
इनको पता है कि एक हमारे जैसा है, वो दूसरा भी हमारे जैसा, तो ये मिल के सब एक लोगों की टीम है, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे हैं ये सारे। ये बिल्कुल। हमेशा से कहते रहेंगे। कभी एब्सोल्युटली। दिल की फीलिंग्स होती हैं, जो बंदा हिम्मत करे इनके खिलाफ, इनके साथ बगावत करने की, उनके साथ ये वही उनका हश्र करते हैं जो ये इनोसेंट सोल था वो। तो इसीलिए एग्जैक्टली। चाहे हम श्री देवी जी की बात करें, जिया खान, इन सब के पास कुछ ना कुछ ऐसे सोर्सेस थे और कुछ हाई लेवल के सोर्सेस भी थे जो इनके पास, उनको डर था कि कहीं बाहर ना निकल जाए, तभी इनको उन्होंने साइड लाइन कर दिया। और ये चीज किस में कन्वर्ट हुई? ऑफ कोर्स दे हैड टू बेसिकली मीनिंग दे लॉस्ट देयर लाइफ एंड दे आर बेसिकली नो मोर ऑन दिस प्लेनेट। मतलब हमें हिकअप्स आ रही हैं, हमारा मतलब दिल दहल जाता है ये चीजें देख के। क्यों? क्योंकि वही बात आ गई ना, हमारा किसी से रिश्ता हो ना हो, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पंच लाइन हियर टू अंडरस्टैंड इज कि हम अपनी कसौटी पे खरे उतरते हैं कि नहीं, एंड देन एंड ऑफ डिस्कशन, ये बात होती है। ये लोग तो, इनकी तो कोई कसौटी थी नहीं, ये खरे किस पे उतरेंगे? ये तो है ही बिल्कुल ही खोटे ही हैं। और वही बात है ना, जब अपना ही सिक्का खोटा तो दूसरों को क्या हम बुरा कहेंगे? जब हम ही वो नहीं है जी, आपस में ही लोग ठीक नहीं है बॉलीवुड के, तो ये सब ही के सब खोटे सिक्के हैं। वेरी वेल सेड। देखो खरे की पहचान कैसे होगी? वो तो या आप और इतनी सारी ऑडियंस, इतनी सारी जनता, इतने अच्छे-अच्छे लोग हैं। आपके थ्रू पता नहीं हम किन-किन लोगों को मिले हैं। मतलब बहुत-बहुत थैंक्स आपका तहे दिल से। और अभी आप थे भी थोड़े टाइम मीडिया पे, थोड़ा आप एक्टिव नहीं थे, चाहे बंदे की पर्सनल लाइफ में कितने काम होते। और बहुत मिस किया। ये वरुण जी चलो अभी थोड़ा बिज़ी हैं, लेकिन थैंक एटलीस्ट कभी कभी चांस मिलेगा, थोड़े टाइम में मिलेगा या जब भी हफ्ते 10 दिन में। लेकिन आप, आपका बहुत बड़ा श्रेय है हर चीज़ में। बहुत नहीं नहीं, आपकी थैंक यू जी। डेडिकेशन है जो अब आप। रेगुलर रहेंगे। अब रेगुलर रहेंगे क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ बिग थिंग, हाँ बट जी, नाउ ये भी बहुत ज़रूरी है, चाहे छोटे छोटे सेशन करें, चाहे हाँ, we'll have more guests and we'll have more speakers and आप जैसे लोग आए, क्योंकि एंड ऑफ द डे वी आर वेरी फ्यू लेफ्ट नाउ एंड हम सबको मिलकर इस फैमिली के साथ खड़े होना है और जस्टिस की फाइट को कंटिन्यू रखना है, बिकॉज एंड ऑफ द डे जब तक जस्टिस मिलेगा नहीं, हम तो नहीं हटेंगे, हम तो ढीठ हैं, हम तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। और बाकी फिर भी हाथ जोड़ के हमेशा अरदास रहती है सुशांत सिंह राजपूत के लिए और सब इनोसेंट सोल्स के लिए कि उन्हें जस्टिस मिले। इट शुड प्रिवेल, बट इट शुड बी डन नाउ। क्योंकि कहते हैं ना, एक उम्मीद के उस पे ही दुनिया कायम है, टिकी हुई है, लेकिन वो फिर उम्मीद भी थोड़ी खत्म होनी नज़र आने लग जाती है। क्या चाहे हर एक डार्क लाइट सी थोड़ी-सी दिखती है, पर आप जैसे, आप हमें हमेशा अवेयर कराते रहते हैं, इवन जो पास्ट में भी ट्रेजेडीज हुई हैं, तभी हमें कभी कोई 2-4 साल पहले वाली ट्रेजेडी भी याद आ जाती है। और लेकिन वही बात है, कई बार थोड़े समय में हर चीज़ और हर इंसान का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत-बहुत आपसे हम मोटिवेट होते हैं और आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जसमीत जी, रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ ऑलराइट। जी, टाइम देने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन, बहुत जल्दी दोबारा बात करेंगे। बिफोर आई आई लेट सिमी जी टॉक एज वेल, मैं यहाँ पर दो तीन कमेंट्स पढ़ रहा था, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात जैसे कर रहे हैं। एक कमेंट तो मैं ज़रूर, लेट मी जस्ट गो बैक। जो बात हो रही है प्ली की, एक प्ली शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, which is gonna be heard on the 12th of July. So 12 जुलाई को वो प्ली हियरिंग है। इसके अंदर बेसिकली शिवसेना ने कुछ 12 ऐसे ये जो एमएलए हैं जो इस टाइम पे मूव हो गए थे एक नाथ शिंदे के साथ, इंक्लूडिंग एक नाथ शिंदे, उनको डिसक्वालीफाई करने के लिए वो प्ली डाली गई है। सो उसकी हियरिंग है 12th को, सो उस दिन पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग किसने ये अभी डाला था, और वो लगता है कमेंट भी कहीं ऊपर चला गया। सो सुहासनी जी, आई थिंक आपने शायद किया था। तो पहली बात तो मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यस, लेट्स ऑल वेट फॉर 12 जुलाई। उस दिन हमें पता चलेगा कि वेदर दे आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट, बिकॉज अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, देन अगेन एक और टर्मोइल आएगा, एक और बार पॉलिटिकली चार्ज्ड अप होगी सिचुएशन महाराष्ट्र की, एंड क्वाइट पॉसिबली री इलेक्शंस माइट हैपन इन महाराष्ट्र। सो वी विल सी कि वहां क्या होता है। दूसरा,
यहाँ पर मैं आई थिंक आप ही ने शायद एक और कमेंट लिखा था, अ, या किसी ने लिखा था। अच्छा, भीकू मात्रे की बात हो रही है। नुपुर शर्मा, ओके। ये अभय भी कुछ कह रहे हैं, कुछ सस्पेंशन को जस्टिफाई किया था, आपको याद है? तो अभय और मैं बाकियों को भी यही बोलूंगा, पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने अपने एक इंडिविजुअल मेंबर को डिस्क्वालिफाई किया था। यस, किया था, बिकॉज जो स्टेटमेंट्स बोली गई थी ऑन अ मीडिया प्लेटफॉर्म, वो एक उस रैंक पे, उस लेवल पे नहीं बोली जा सकती। सो what the party did was actually right. You could say anything you want, anybody can say anything you want, but जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इट्स लाइक आपके कंपनी, मैंने कंपनी के बारे में बड़ी बार बोला है, आईटी का बंदा हूं तो आईटी की मैं सिनारियोज ले आता हूं। एक कंपनी को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ यू आर इन द मार्केटिंग टीम, या इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंपनी एज द प्रोग्राम टीम और अ प्रोडक्ट टीम, तो देर आर सर्टन गाइडलाइंस, देर आर सर्टन प्रोटोकॉल्स दैट यू हैव टू फॉलो। आप कुछ भी नहीं बोल सकते कहीं पर जाके। तो इसलिए जो उन्होंने बोला नुपुर शर्मा ने, even though those were facts, but there are certain things that cannot be said in a certain way, in a certain manner, in a certain platform. उस वजह से the political party took cognizance of that and they suspended her for 6 years. So what they did was right for saving grace for their own political party. इस टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि even the political party was wrong in doing that. What they did was right for their own party. So let's all make sure there is a little clarity around that. And 12 तारीख के बाद we'll know more. And last, before I take Simiji, मैं फिर बोलूंगा, yes, RS, RDX sir will be here very soon. We are planning, एक ऐसा सेशन हमेशा हम प्लान करेंगे every month या every week, या we'll see. We will get going on that, जहां पर हम nation building, we focus on that, or we take certain topics where you all get to interact with Colonel. So just wait for it. बहुत जल्दी हम उसको लेंगे. I'm hearing a lot of disturbances. सिमी जी, मुझे नहीं पता. I hope uh, you guys can hear me. जसमिन जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं थी, राइट? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर थी अरुण जी। ऑलराइट, सिमी जी, प्लीज गो अहेड. आप आप बहुत देर से कर रही हैं, प्लीज आप भी बोलें. फिर इट्स ऑलमोस्ट टाइम एज वेल, एंड आई विल ट्राई टू रैप इट अप. आई सी, अच्छा, आई थिंक वो दोबारा ज्वाइन करेंगी. शी इज हैविंग सम डिस्टर्बेंस. हेलो शशि जी, नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. हेलो एवरीवन. और एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूंगा वही चीज जो मैंने पहले भी बोली, कि हम लोग ये ना भूलें कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी पॉलिटिशियन के लिए नहीं आए थे. हम यहाँ आए थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उसकी जस्टिस के लिए, उसकी फैमिली के साथ खड़े होने के लिए, सो दैट वी ऑल कैन फाइट टुगेदर. वी डोंट केयर उद्धव ठाकरे कौन क्या कैसे करके गया, मुंबई का हाल क्या किया. He is part of that cabal. We really want to get justice for Sushant, so we will fight it out. Simi ji आई हैं, so namaste Simi ji. Let's hope you can hear us. You are mute. शशि जी, आप भी आ सकते हैं. नो वरीज, अभी आई कैन कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर मिनट्स. हाँ जी सिमी जी, डजंट लुक लाइक आपकी आवाज आ रही है. आप म्यूट पे है वैसे. Yeah, can you hear me now? यस. No, first 45 minutes everything was fine, and suddenly last few minutes it बहुत disturbance. It's clear now, and if the Wi-Fi gives a problem, actually I removed the Wi-Fi, so I'm on my अच्छा. plan now. तो पहली तो एक शिकायत है, आप आए नहीं 2-3 दिन से, और दो, ये नया नया घर का नाम हम सुन रहे हैं, तो हम तो फिर अजनबी हो गए. 3, चाय और समोसे का टाइम आने वाला है. You guys owe me that. At least एक कप चाय और समोसा. ऐसे खाली चाय नहीं पियेंगे. Anyway, ओके. so सबसे पहले तो मैं सिमी जी ये बताना चाहूंगा कि हाँ जी. लास्ट 1 month हैज बीन क्रेजी, एंड मैं अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी नहीं बता पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट एक महीने में दिस ह्यूज चेंज हैज कम अप. वी आर नॉट स्ट्रेंजर्स, आई विल नेवर बी अ स्ट्रेंजर. और चाहे एक स्टेट ही बदला है,
दिल मेरा अभी भी कैलिफोर्निया में ही है, वहीं धड़कता है, और आई माइट बी बैक, बट फॉर नाउ, फॉर कपल ऑफ मे बी Yeah, ईयर्स, yeah, थोड़ी देर के लिए चेंज है, बट चेंज इज yeah. ऑलवेज गुड, No, I'm राइट? glad. सो I'm glad you guys are okay. And या जूलियन है क्या इनका नाम? बहुत ही अच्छा बोली है, डिटेल्स में बोली है, all those जैस्मिन जी, things that have happened. I really, really enjoyed. You know, and I know that she's there. I hope that she comes, you know, more often, and would love to hear her. तो बस यही कहना है. I'm glad about the महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, जो bad guy is out. You know, धीरे धीरे clear हो रहा है, and especially with this chief minister, बात ही अलग है. तो hopes ज़्यादा हैं. तो we'll होप्स continue ज्यादा. our fight. Yeah, but you know, we're not going to lose hope, and we're going to continue no matter what. But there's, you know, a little more hope with the new government. यही कहना था. And All right. when you're ready, I'll sing a bhajan at the at Perfect. Thank you so the much. end. अभी किसी Let me को take Shashi ji as well. बात करना है Yeah, लगता है. Shashi ji के बाद मैं आपको लेता हूँ. Sure, बात कीजिए. All right. Thank you. हाँ जी, जय 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 भारत, शशि जी. जय भारत। अरुण जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया? बहुत बहुत बढ़िया. All well. I think you have relocated to another state in US, right? That's what you were saying. Correct. Great. Okay, yeah. So coming to the topic as such, see this judicial system पे तो मुझे ना कोई political party पे, ना कोई judicial system पे मुझे कभी भरोसा था ही नहीं, ठीक है? So even though there's a change of state government in Maharashtra, or even in Nupur Sharma's case, we can see, okay, this government's willingness to file cases against these big and rich and powerful people, it has always kind of fallen flat on them. So that is why I believe in the strength of people's power. तो मैं उस पे ही सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ. So that is the one which we have to focus on. Okay, yeah, we might be going through our own struggles and all that. But one positive thing which I see is, okay, they see slowly and surely we see so many loopholes. जो 2 साल पहले हमको मालूम ही नहीं था. कि पहले हम लोग को लगता था कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट गया, कुछ जजमेंट हुआ है तो इट्स ऑल हंकी डोरी, इट्स ऑल द राइट जजमेंट एंड ऑल दैट. बट आज देखते हैं कि नुपुर शर्मा को ही कोई किया, तो वी कैन सी हाउ मच रॉन्ग there is in the entire system itself. Yep. So I'm only hoping that, okay, by the time CBI files the case, the charge sheet and all that in Sushant's murder case also, these would have been ironed out. And I think the law and order minister and Modi ji, Amit Shah ji, jo bhi hai, so they need to iron out all of this, and only then we can see justice being served. But that is also something which won't happen maybe in a day. It will take years together. So I think we are getting to see so many loopholes in the law and order system itself, in the judiciary, in the government, and maybe the way investigations are happening and all that. So, when even if CBI files charge sheet, there will be a lot of ups and downs in that also. I'm sure the culprits will be arrested, they'll be let go on bail, and then there will be so many ups and downs. We'll feel frustrated that ये क्या हो रहा है अभी. Then also there'll be a period of lull that, okay, जैसे अभी जिया खान का केस में हो रहा है, वैसे ही सुशांत का केस में भी होगा. But lot of cleansing has to be done so that we see that, okay, yes, justice. Forget Sushant and Jia. Even Modi ji, the 19 years ke baad he got this judgment by Clearance, Supreme yeah. Court only, right? Yeah. So imagine a CM ko agar who's supposed to be such a powerful person in the entire political system, even he had to struggle. Amit Shah, he was saying in that interview that he spent 3 months in jail. This was maybe about 15 years back or so. So how much, this dirt is there in the judicial system, usse malum pad jata. But now we see Teesta Sitalwad being arrested and so many things being taken into this one. But his case maybe Zubair, means what I heard is, okay, the charges that are against him, okay, now maybe ED has come and all that, maybe it's more, it'll be more, we can be more assured that, okay, yes, he will be arrested and he'll be sent to prison for maybe long term or whatever. But we have to see, means Rahul Gandhi को बार बार ईडी में बुला गया था, and then अभी क्या चिदम्बरम को बुलाने के लिए क्या कुछ किसी खास मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं लोग, या संजय रथ को अभी बुलाया तो है, बट दिस स्टार्टेड समटाइम इन अप्रैल. सो ये सब देख के ना मुझे नहीं लगता कि मे बी जुडिशियल सिस्टम इज नॉट इवन 10% क्लीन.
So a lot of things have to be reverted, and maybe there are a lot of changes. And I heard in another channel that जो भी IPC sections जो भी है सब ब्रिटिश के टाइम के हैं, and ये जो vacations पे जाते हैं जज लोग वगैरह, so in those days British judges had to travel to London, that is why we summer vacation, winter vacation and all. बट आज के जजेस को क्या जरूरत है, एंड सो मेनी, इतना छुट्टियां तो बच्चों को भी नहीं मिलता है, स्कूल के बच्चों को. सो दैट इज वेयर आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी क्लीन्ड अप. इतने करोड़ों के केसेस में 4 करोड़ केसेस या जो भी है ओपन है, मैंने ऐसा सुना. सो वी हैव टू हैव जजेस वर्किंग ओवर टाइम, नॉट जस्ट फॉर दी हाई एंड दी अफोर्डेड पीपल, एंड जो भी टर्मिस्ट है उसके लिए 12 बजे रात को खोलेंगे कोर्ट को, ऐसा सब नहीं होना चाहिए. Correct, So, correct. and I was reading in the newspaper, one farmer 30 साल के बाद he got a judgment that he is innocent of some crime. उसके पास एक कट्टा गन था बोल के he was in prison and this and that, and then after 30 years when all his savings were spent on the case itself, yeah, he got that innocence thing. But 30 साल, imagine what is the use of this judicial system if pathetic. Anyway, so let us keep fighting the system, because yeah, a lot of refinement, a lot of cleansing up has to be done. And the only people whom we can trust is the ones in the movement only. We can't trust even Modi ji, because he'll be under pressure. The government that he leads, he might be clean, Amit Shah might be clean, but the ones below him, we really don't know. Are they really clean? Yeah. So that's मैं, my take. thanks for bringing that issue, and let me just read out some data for you and for Hmm, everyone. right. 2021 की एक फाइंडिंग्स थी, 2021 दिसंबर की है ये. Hmm, सुप्रीम कोर्ट के पास एज ऑफ दिसंबर 2021, सो अभी तो 7 महीने और हो चुके हैं, बट 6 महीने 7 महीने पहले तक there were hmm, 73,000 open cases or pending cases just with Supreme Court. But hmm, overall, अगर देखा जाए, including all the other courts within India, there hmm. are 44 million cases which are open. कुछ ऐसे केसेस हैं जो 30 साल से चल रहे हैं, 30 years. दूसरी 40. बात, दूसरी बात मैं यहाँ पर ये मैं एक और सेशन के लिए डेटा रखा हुआ था, बट चलो आज मैं इस पे, आपने क्योंकि यू ब्रॉट दिस अप, लेट मी जस्ट शेयर वन मोर डेटा पॉइंट. Hmm, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, इट हैज 193 वर्किंग डेज इन अ ईयर. 365 में से 193 डेज दे आर वर्किंग. हाई कोर्ट जो होते हैं वो 210 दिन काम करते हैं, और जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, छोटे वगैरह कोर्ट्स होते हैं, दे वर्क 245 डेज. पर सुप्रीम कोर्ट का हाल इतना बुरा है इस टाइम, मैं क्या बोलूं. आई मीन, आई वांट टू बी रिस्पेक्टफुल अराउंड सुप्रीम कोर्ट, बट स्टिल hmm. it has about 45 days of summer break, 15 days of winter break, और एक हफ्ते की होली की वेकेशन. एंड देन यू एड ऑल द दशहरा, दिवाली, ब्ला ब्ला ब्ला. तो इसके अंदर आप अगर लेके चले, आप मतलब 190 days ऑफ ऑपरेशंस में आप कितने केसेस हैंडल कर लेंगे. और ऊपर से सेकंड चीज, वी ऑल नो देर आर ओपन वेकेंट जजेस की जो सीट है उसके ऊपर वैकेंसी इतनी ज्यादा है दैट इट विल टेक देम नॉट 30 बट मोर देन 90 years टू फिनिश ऑफ. अगर आज भी वो शुरू करे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे उनको ये 44 मिलियन केसेस को खत्म करने के लिए. तो Hmm. it's really We're shameful. talking about justice. Anyways, so that is the thing. So sometimes I wonder what is Kiran Rijiju doing actually in the cabinet. Means, isn't he never pulled up? वो तेलंगाना गया, वो किया, ये किया. मतलब I don't know what he does he want to do as a law and order minister. ये सब उसका ही काम है क्या? हर केस के लिए मोदी को ही आगे आना पड़ेगा, उसका क्या काम है फिर? And this was given to him by I think R.S. Prasad was before him. एंड उसने ठीक से फंक्शन नहीं किया बोल के इसको लिया, बट ये क्या ठीक से फंक्शन कर रहा है all the time. I don't know what is his agenda. I still don't understand. And no comment, nothing. No, on the Nupur case also nothing is being said by him. Or on the Udaipur killing also nothing is being said by him. ये क्या हो रहा है? What is he wanting to do? I still don't understand. And if this is a plight of a central government which has been voted in majority, Yeah.
See, even if it's a conspiracy against the central government, I think the central government is allowing for this conspiracy to succeed if they function like this. See, we did surgical strike and all that, maybe whenever in 2020 जब ये and all that. उसका क्या यूज है? उससे ज्यादा लोग तो इधर अंदर के लोगों को नहीं मार डाले, either by way of this or that. And so क्या security they say ISI is behind everything and all that, and but the Pakistan is in FATF grey list it seems. तो पैसा कहाँ से आ रहा है ISI को? And I really don't understand ये कि ISI is much more powerful than India or what? उस एक कंपनी को शट डाउन करने के लिए इतना सब स्ट्रगल करना पड़ता है क्या? If they are focusing on security like this, then ये भी कोई और स्थान बन जाएगा, ये हिंदुस्तान तो नहीं रहे. पता नहीं क्या हो रहा है. That frustration is really, I don't know. If this is the way security of the country is being managed. I know. नहीं, ऊपर से ऑब्वियसली इस तरह के जो चीजें हो रही हैं, राइट. अनफॉर्चुनेटली कन्हैया लाल का केस, इतना ब्रूटल किलिंग फॉर व्हाट? फॉर just supporting somebody who's said something which is factually right. मैं सिर्फ यही कहूंगा कि again, not to support or go against anyone, but जो नुपुर शर्मा ने बोला, that is actually factually right. Just that the platform and the way it was said maybe might have not been wrong, but उसके basis पे killing people like this, very very, और पता नहीं हमारी कंट्री में अभी हो क्या रहा है. किलिंग तो ऐसा हो गया जैसे पता नहीं, like it's become a joke. People's like existence has become a joke. So I think we really need to it's about what is being done to address that itself. See, from what I can see, those two people who killed Kanhaiya Lal, I don't think they even know what is hadith. उनको कहा गया है कि जो भी अल्लाह को नहीं मानते हैं बस वो काफिर है और उनको जीने का कोई हक नहीं है. एंड अगर मार डाला तो जन्नत मिलेगा, हूर मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा. एंड आई वाज लिसनिंग टू सम स्पीच बाय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठा. ही वाज सेइंग सी इधर तो शराब हराम है ना इस्लाम के लिए, तो ऊपर जाके क्यों उसके पी लिए यार? जो भी पीना इधर ही पी लो ना. इतने सारे 72 हो रहे कि क्या इधर 4 भी या कर सकते हैं, तो 72 औरतों की क्या जरूरत है? See, they don't even know what is Quran, what is Hadith and all that. I think Hindus know more about Hadith and Quran now. And these guys are being misled. And जो भी आ रहे हैं, it is not that they are millionaires or billionaires. ये लोग सब whatever I have gathered is ये मुल्ला जो भी है, जो they are getting all the funds, they are misguiding all the local youths and all that. जो भी कानपुर में आए थे and all that, they are not from affluent families at all. They will only be influencing these people. जो लोग आके पत्थरबाजी करेंगे या ये बॉम्ब की. And I heard recently 81,000 जो भी उधर मिला था ना वेस्ट बंगाल में, बीरभूम में. They wanted to destroy the entire detonators. 81,000 worth of kilos worth of detonators were found in West Bengal, बीरभूम में, and they wanted to blow up the entire country. नहीं, ये लोग की मांग क्या वो समझ में, they want land or they want the land to disappear. What is their वो भी पता नहीं चलता है. पागल हैं मतलब they've been brainwashed like anything. और इतना ब्रेन वॉश हो चुका है कि दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं आता. आई मीन दिस इज हाउ आई वाज जस्ट वाचिंग टुडे. एक किसी की क्लिप में देख रहा था. देयर इज दिस मौलाना हु इज आस्किंग अनदर मुस्लिम लेडी, डू यू बिलीव इन जन्नत, डू यू बिलीव इन दिस, डू, एंड वो जस्ट ब्लाइंडली शी इज सेइंग यस 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 यस. ऐसे थोड़ी ना चलता है यार. मतलब यूज योर ब्रेन, यूज योर कॉमन सेंस. व्हाट आर यू इवन. और आपने सही कहा यार, यहीं पी लो, यहीं हूरे कर लो, जो करना है, बेवकूफियां करनी है. बाद में किसने देखा है? हाउ डू यू इवन नो दैट? No, do they even have a count of how many people are leaving Islam? कितने ex-Muslims have increased like anything, all because of this violence only. Exactly. जो भी पढ़ते लिखते हैं ना, जो उनको समझ में आता है कि जो भी सिखाया जा रहा है वो गलत है मदरसों में. ठीक है, तो आई डोंट नो, उसका हिसाब तो है ही नहीं. Anyway, so I think that is why they are forcing people into this or what, I really don't know. Anyways,
So yeah, thank you, Varun, for this Thank you, opportunity. Shashiji. Thank you for joining, and we'll talk soon again. Thank you. Absolutely, thank you. All right. Hello, Vibaji. Welcome. Hi, Varun. It's been a long time, Hanji, it's been a long time. How are you? but Doing well? wishing you all the best. I just came, मुझे जो आपके पहले स्पीकर थे उन्होंने बताया कि you moved somewhere. So Correct. आपको दिल से बहुत बहुत बधाई Thank you. Thank you. और जितने भी स्पीकर्स हैं उनको नमस्कार. Thank you for joining, and good to see you. And good, आपका comment पहले भी पढ़ा था मैंने, और आपको आपकी एक्टिविटी भी देखता रहता हूँ ट्विटर पे भी. So you keep on doing what you're doing, because end of the day, every matters, every tweet matters, and every single action matters. So thank you. बस थोड़ा बहुत जितना जो अंदर की फीलिंग है वो तुम्हारे जैसे चैनल्स के थ्रू ट्विटर के थ्रू थोड़ी सी जाहिर कर देते हैं. बहुत बढ़िया. बाकी जो आपकी पहली स्पीकर थी शी सेड वेरी ब्यूटीफुली, उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया. बट Right. वरुण, नुपुर शर्मा के केस में तो मेरा सबसे एक ही क्वेश्चन है, जितने भी हैं मतलब आपके व्यूअर्स हैं या एवरीबडी, अगर ये ऐसी कोई स्टेटमेंट ये लोग यूएसए में, यूएसए का तो चलो थोड़ा ज्यादा ब्रॉडर है, जो है उनका जो थिंकिंग है, माइंडसेट है. लेट्स Yeah. कम टू इटली, रोम. आप रोम में बैठ के वेटिकन को गाली दे सकते हो क्या? Absolutely not. नहीं, यहाँ फ्रांस में तो बैठ के आप कैथोलिक्स को गाली दे सकते हो क्या? yeah. या हम सऊदी अरेबिया में बैठ के उनके मक्का मदीना को गाली दे सकते हैं? उतनी उतनी हमारी अरे वो तो आप वहां बैठ के क्या, वो कहीं भी नहीं दे सकते, राइट? वो तो कहीं भी काटने पाटने आ जाते हैं. वो तो आ जाते दैट्स हैं. टोटली डिफरेंट सिनेरियो है जी. मतलब सर तन से जुदा कर देंगे आप. पता नहीं क्या है इनका माइंडसेट. आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, किसी रिलीजन के अगेंस्ट आई एम नॉट देयर, लेकिन आप अगर खुद बोल रहे हो तो सुनने की क्षमता भी रखो. करेक्ट, करेक्ट. बाकी अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या सोचा, उनको तो मेरे ख्याल से ये सुशांत सिन्हा जी भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और एक मेजर गौरव आर्य, मैं उनको भी सुनती हूँ. दे आर ऑल वेरी अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ दैट जज. करेक्ट, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. ये यही मैं भी इस सेशन पे बोल रहा था. Everybody has a right to be, because you loose tongue, you and your loose tongue, this doesn't suit a Supreme Court lawyer. एग्जैक्टली, And that too in a verdict. मतलब ये हो रहा है ना, कोई कोई पार्टी में दो फ्रेंड्स खड़े हैं और फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं जजेस के, what नुपुर शर्मा ने ये किया, she has a loose tongue. That is still understandable because that's a personal opinion. You are sitting in that seat. You're bringing shame to that Supreme Court की जज की. वो जो एक सीट होती है, उसकी एक गरिमा होती है, उसकी एक मर्यादा बिल्कुल होती है. बिल्कुल. उसको कैसे आप अब्यूज कर सकते हो? एंड सच कमेंट्स, आप सिंपल, अगेन आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द वर्डिक्ट एक सुप्रीम कोर्ट का है, वो सबको मानना पड़ता है जो भी है. पर सिर्फ इतना का आप ये कहते थे कि व्हाट, मिस नुपुर शर्मा, वी फाइंड यू गिल्टी, you should not have used certain words, please apologize, and this is all we expect. टॉपिक वो जो खत्म. ओपोनेंट था, वरुण, जो ओपोनेंट था जिसने इंसाइट किया, उसको भी तो थोड़ा बहुत गिल्ट का दे दो ना स्टैम्प. हाँ, या उसको उसको तो स्कॉट फ्री तुमने भेज दिया, बिल्कुल जैसे वो तो कितना ऊपर का, सच में कोई पैगंबर ही उतर के आया है नीचे ऊपर से. और इसका ओवैसी को नेगेटिव, क्यों नहीं देते? हाँ, ओवैसी इसका को क्यों नहीं नेगेटिव देते? कितना होगा? इसका नेगेटिव दूसरा होगा कि ये जो दो लोगों ने मिलके कन्हैया सिंह को मार दिया, वो लोग इसको अब्यूज करेंगे कि देखो, आप तो हम पे कह रहे थे. एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने वर्डिक्ट में बोल दिया उस नुपुर शर्मा के अगेंस्ट हाँ कि यू हाँ. आर लूज टंग. तो आपने जब उसको बोल दिया उसकी जबान ऐसी है, हम उस जबान के ऊपर एजिटेट हो गए, प्रोवोक हो गए, हमने ये कर दिया. सो वी आर सॉरी, बट हमें तो प्रोवोक किया गया था. सो बस. the whole thing has been washed out, completely washed out. नहीं, Very shameful. लेकिन इसका तो वरुण कोई एंड नहीं है ना. वो मारेंगे दो, फिर और वैसे भी हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का ठेका तो सिर्फ हिंदुओं ने लेके रखा हुआ है, बाकी किसी कम्युनिटी को तो सेक्युलरिज्म करना नहीं है. वो Yeah. सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर्स लाइज ऑन द सो कॉल्ड, मतलब जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, ये तो माइनॉरिटीज हैं. Hmm. चलो I वो know. तो खैर एक अलग ही डिबेट है. बट माय पॉइंट इज कि आई डोंट नो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो यार आप, कुछ तो मतलब
कुछ पढ़ आई लिख नो। के तो वहाँ पहुँचे होगे वहाँ पे। सीरियसली नहीं, ये तो बहुत ये, सो आई कंप्लीटली एग्री। एनीबडी हु इज बैशिंग दोस टू जजेस is completely okay, because end of the day we expect some kind of respect, from people sitting at that position. ऐसी एग्ज़ैक्टली, पोजीशन पे बैठ के, मैंने जैसे पहले भी बोला, मैं फिर वही बोलूंगा, विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव बिल्कुल। सो मच पावर, हुँ, और आपके वर्डिक्ट्स, दीज कुड बी यूज्ड इन अदर केसेस। कितनी बार हमने ऐसे देखा है, किसी भी केस के अंदर दूसरे केस के वर्डिक्ट को या उसकी जजमेंट को क्रॉस यूज किया जाता है। आप अगर इस तरह से देंगे, जस्ट इमेजिन। अब अगेन, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट हिंदू मुस्लिम डिवाइड एंड हाँ, ऑल दैट स्टफ, ट्रू, ट्रू। बट अगर हम इसको डिस्टेंस पे रखें, फिर भी ऐसे कितने हिंदुओं का हमने केसेस सुना है कि कृष्ण जी या शिव जी के ऊपर किसी ने कुछ किया हो, और वो हिंदू जाके तलवार लेके किसी को काट आया हो। हमने तो नहीं ऐसा सुना। यहाँ पर अगर किसी ने बोला, विच इज रॉन्ग, मैं ये भी कह देता हूँ कि हाँ, किसी भी भगवान को, चाहे वो किसी भी रिलीजन हो, वी रिलीजन का कैनॉट बिल्कुल। वी कैनॉट डिसरिस्पेक्ट। बट हाँ, अगर हो भी गया, अगर कहा, अगर आपने उस बंदे से अपॉलॉजी, मैं तो कहता हूँ जेल में भी डाल दो, चलो, अगर आपको इतना ही है, पुट देम इन जेल फॉर लाइक वट एवर ड्यूरेशन जो जो लॉ में होता है। यू कैनॉट जस्ट किल पीपल, राइट? कोई तुम साला सब्जी तरकारी थोड़ी ना काट रहे हो कि हुँ, तुम हुँ, बंदे ही मार के खत्म कर दोगे यार। आई मीन, so there is definitely a little bit of हुँ, वो रेडिकल वो माइंडसेट जो हो चुका है, हाँ, लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है कि माई वे और हाईवे वाली बात हो गई कि इसी ट्रैक पे चलोगे तो ठीक है, नहीं तो हम तो तुम्हें काट देंगे। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर श्योर। एक्सेप्टेबल बट आई थिंक इंडिया में तो एड्रेस करने के लिए पूरी इकोसिस्टम काम कर रहा है ना इस समय। ऑपोज़िशन है, फिर हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, अभी अमेरिका भी कौन-सा खुश है इंडिया से, क्योंकि या इंडिया इज़ विद यूएसएसआर, तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं इंडिया में अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए, तो होल इकोसिस्टम इज़ वर्किंग। एब्सोल्युटली। तो अपने बट एंड हाँ, रीजन को नहीं देखते लोग, और ये बॉलीवुड वाले अगर देखो, इनको तो कहाँ गए, कन्हैया लाल या ऐसे कितने ऐसे लोगों को मारा गया है। मैंने तो देखा नहीं इनको आके किसी को ट्वीट करते हुए, बात करते हुए। पर वो उद्धव जी चीफ मिनिस्टर नहीं रहे, तो सबकी झड़ी लग गई, सबकी टूल किट शुरू हो गई कि आपने बारिश में हमें बचाया, आपने कोविड में हमें बचा लिया। भाई साहब, यही तो बचा रहे थे सबको। तो ये मतलब काम कितना अ, अर्नब ने बिल्कुल एक बात अपनी डिबेट में दो लास्ट वीक सही बोली। ही हाँ, सेड उद्धव ओनली वर्क फॉर बॉलीवुड। एज अ करेक्ट, सीएम करेक्ट, आई उसका हर्ड दैट। पूरा निष्ठा उसकी पूरी जो थी ना, वो सिर्फ बॉलीवुड के लिए थी। यप, और बाकी आई फील हम लोग चाहे कितना भी बोले वरुण जस्टिस, अगर हम लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं देन अवर हम लोग जस्टिस फॉर एसएसआर डिजर्व के को बोलने का डिजर्व नहीं करते। हमें कंप्लीटली इनको बॉयकॉट करना है एट एनी प्लेटफॉर्म। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, दैट्स ट्रू। वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, आटे के साथ घुन भी पिसता है। तो अब जो होता है वो तो करना ही पड़ेगा। वी कैन नॉट, अरे वन सेकेंड, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते उसका। कि बॉयकॉट मीन्स कंप्लीट एंड टू एंड बॉयकॉट। कंप्लीट बोलना या सो थोड़ा बहुत कई बार होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। बट अभी तो ये भी अच्छा हो गया, अब चाहे वो अक्षय कुमार जैसे हों, जो बॉलीवुड के में रह के भी भगवान के ऊपर मूवीज, हमारे सोल्जर्स के ऊपर मूवी। अभी तो मैं देख रहा हूँ, शायद वो अपने भाई बहन और पता नहीं क्या रक्षाबंधन ऐसे रिलेशंस, अब फेस्टिवल्स है। के ऊपर भी मूवीज बनाएंगे। और but end of the day, I think people have opened their eyes, and I don't think they will go back anytime soon. जब तक एटलीस्ट सुशांत को जस्टिस नहीं मिलती, तब तक तो ये बॉयकॉट कहीं नहीं जाने वाला। सो आई एम ग्लैड, एंड वी ऑल शुड बी ग्लैड एंड प्राउड, एंड वी शुड कंटिन्यू बिल्कुल। फॉर श्योर। थैंक यू। थैंक यू वरुण। एन्जॉय द रेस्ट ऑफ योर डे। बाय। Thank you, thank you. Good night. All right, guys. So I'll try to wrap up. Looks like सिमी जी काफी देर वेट कर रही थी, उनका नेटवर्क का भी कुछ इशू था। So सिमी जी, अगर आप सुन रही हैं, I'm here for another 1 or 2 minutes. So if you want to join, आप उस पर खत्म करेंगे. But otherwise, I'm gonna wrap it up. ट्राई तो मैं कर रहा था 1 घंटे का हो, बट 1.5 घंटा हो रहा है। फिर मैं वही रिपीट करूंगा चीज जो मैंने नुपुर शर्मा के लिए बोला कि नो मैटर व्हाट, no matter what, who says what, where, uh, is a different scenario.
पर अगर आप एक किसी पर्टिकुलर पावरफुल पोजीशन में रहते हैं या आपके पास विजिबिलिटी ज़्यादा है, it comes with a lot of responsibility. So what Nupur Sharma said, though it was right, but at the same time, जिस तरह से उसको कहा गया या जिस तरह से उस प्लेटफॉर्म पे हुआ, of course she should not have said that for sure. But उसके basis पे party had already taken the most drastic step, which was to suspend her for 6 years, which should have been good enough. Uske baad, she was also made to take back her words, her statements, and apologize, which also she did. End of the day, जब ये सब steps हो चुके हैं, there was no reason for such vile comments. Okay, you and your loose tongue and blah blah blah. The Supreme Court judges should have also said the same, or should have taken this the same way as the political party took it, which is, Miss Nupur Sharma, you said something which might have hurt certain people's sentiments. Just apologize. End of it. Yes, Sunil ji, absolutely. Her state was a defense and not for insult. That's what I'm saying. She was factually right. What she said was not wrong, was not false. She was not making up. But then there are certain protocols, certain things have to be said in a certain way, and it's applicable for everyone. तो जो दूसरे ने बोला, जो दूसरे ने इंस्टिगेट किया, उसके साथ भी वही होना चाहिए था, which is he should have been arrested. There should have been cases filed against him, different cities में and all that stuff. So absolutely I agree with that, what you're saying. एंड नाउ ये जो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने जो जो स्टेटमेंट्स पास ऑन कर दी हैं, उसकी वजह से those two criminals who have killed Kanhaiya, and there will be many more, they can use these statements के सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी उसको गलत प्रूव कर दिया. Nupur Sharma was wrong. Her loose tongue statement, her she did everything wrong. They will use it, abuse it, and get free out of jail in no time, which is wrong. Did any person come and say that the statement was wrong? एग्जैक्टली सो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे नुपुर शर्मा के ऊपर तो पूरी वो कहते हैं ना बौछार हो गई. शी वॉज ब्रॉट डाउन लाइक एनीथिंग. Why was the other person not brought down in the same way? So ये चीजें हैं जो जो हम सबको भी देखनी है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि मैंने तो नहीं देखा कभी कि हमारे भगवान की कोई ऐसी बदनामी है. ये अक्षय कुमार ही फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, ये हमारी वैष्णो देवी के लिए बोल रहा था कि बॉस आप वहाँ पैसे क्यों जाते हैं, वहाँ जाते ही क्यों है लोग, वहाँ डोनेट ही क्यों करते हैं, उसकी जगह तो हम अपने सर्वेंट और इन लोगों को पैसे. दिस गाय, इसके साथ तो किसी ने कुछ नहीं किया. ये हमारे उस एक रिलीजियस प्लेस की इतनी बेइज्जती की. इसने मूवीज के अंदर कितनी बेइज्जतियां करी हैं, कितना मॉक किया है हमारे लीडर्स, हमारे भगवान सारे भगवान, कितने भगवान के नाम इसने अब्यूज करे, फिर भी इसके साथ तो कुछ नहीं हुआ. बट व्हाट सुप्रीम कोर्ट जजेस हैव डन is given more arsenal, given more fire to those radicals जो हमारी कंट्री में एक अनरेस्ट ला रहे हैं. So this is very sad to see that, and let's hope, let's pray कि ये चीजें यहाँ पर खत्म हो, and people like Nupur Sharma doesn't have to suffer the way she is suffering right now. It is very sad to see, being a woman, being a lady, being a political person, this is all she has to. उनकी तो वो जो different cities और states में cases डले हैं, उसको भी इन्होंने क्वैश कर दिया कि she had requested कि please उसको Delhi change कर दे, and now the Supreme Court has quashed that as well. So that means she will have to travel, she will have to go to different cases, handle those cases. जहाँ पर भी नहीं जाएंगी वहां पर there is a possibility of a arrest warrant to be issued against her. So this is really sad to see all this happening. End of the day, all I can say is let's all keep on praying for Sushant. Let's not focus more on the political drama, the turmoil that's happening. और जब भी जो होगा, we'll stick together for Sushant, and let's hope we get justice for Sushant, we get justice for Disha, and we get
Exactly. Very well said, Judy. कि जब ये हुआ था तो उस टाइम पे ये सारे केसेस क्यों नहीं डाले गए थे उन लोगों के ऊपर, तब उन लोगों को क्यों जाने दिया गया था। अब नुपुर शर्मा ने स्क्रीन पे कुछ बोल दिया तो उसके बाद, और उसके लिए भी उन्होंने, शी हैज unconditionally apologized, she has taken back her words, she has been suspended, so it was all said and done. This kind of response by the Supreme Court judges is not acceptable. So one lady second came into constitution and because of Nupur should go. Well said. So I'm gonna end this session. We'll try to keep it 1 hour, but आज बहुत दिनों बाद आए थे, so I spent some extra time, and I really appreciate each one of you जिन्होंने मुझे DMs, WhatsApp messages किए. It was just a personal thing, but I really wanted to share it with you all. So थोड़ा time difference भी होगा. We will have a little bit of change in our plan, but thank you so much each one of you for all the love and all the support and the blessings. Jasmine ji, आपके तो बहुत सारे fans और बन गए हैं, so I love to see you more often, and let's keep motivating each other. We'll have more people. We'll have RDX, Colonel RDX as well very soon. We will set up some sessions and we'll keep on roaring for Sushant. And lastly, एक बार फिर बोलूंगा मैं, please, let's stick together with Sushant's family, with the sisters who really, really, really are in deep pain. They have to fight this fight. At the same time, they have to handle all the trolling abuses. यहाँ पर लोग बैठ के 5 मिनट 10 मिनट घंटा टाइम पास करते हैं and they abuse the family, which is very shameful. So please, let's stick together. Let's get justice for Sushant together. On that note, thank you so much. I'll see you guys very soon, and justice for SSR. Jai Hind, Jai Bharat. Good night.